2008, I became fed up with government money, with the corruption, the manipulation, so I created a digital currency. Digital money that can be sent directly from one person to another without any bank or government involved. And the best part? It's hard money. It's the hardest money ever invented! Bitcoin is very hard to make more of. Each new coin gets added to the supply only after a computer works very hard to solve a math problem, where there's no shortcut and solving it costs a lot of energy and time. Okay, but if it's on a computer, can't I just copy and paste? Not with Bitcoin. You see, there's a public record of every Bitcoin ever created. It's called the blockchain. It's like a puzzle, and each Bitcoin has its own unique shape. And because everyone has a copy of the public record, if someone tries to fake a Bitcoin, it won't fit the puzzle, and will be rejected by the network before anyone can use it. That's why Bitcoin is so safe from criminals and the government. You said criminals twice! And unlike dollars, which can be printed endlessly, there will only ever be 21 million Bitcoin. It's almost impossible to inflate. The only way to get it is to earn it, or buy it from someone who has. No offense, but if you control Bitcoin, couldn't you manipulate it just like the government? I don't control it. No one person does. It's controlled by a public network of Bitcoin users that anyone can join. So if someone wanted to change something in Bitcoin's code, they would need to get the majority of the millions of Bitcoin users to agree to it, or the change doesn't happen. And when has the majority of us agreed on anything? One life on the paper is garbage! Touché. Wow, I didn't know made-up money could make so much sense. Today, millions of people send Bitcoin instantly and cheaply to each other around the world without any bank or government involved. And because Bitcoin is hard money you can't just print more of, the more people who use it, the more valuable it becomes. Emily, if we take Lyle's Bitcoin, we could be rich! I could pay for college entirely! You could outsource your movie and pay to have your name in the credits. Slow down. I'm not saying that Bitcoin will make you rich quick, or even at all. Right now, only about 1% of the world owns Bitcoin. And because it's still being adopted, some days it goes up and even down. Also, investments are potentially lucrative and be risky. Only invest what you're willing to lose. No. Wow, I think I get it. Good money should be easy to use, but hard to create. And because Bitcoin is digital, it's fast and cheap to use. And the blockchain makes it hard to inflate. Thanks, Mr. Satoshi. What? Mr. Satoshi? He's gone? Or was he ever even here? Okay, so how was the video? Like, you guys are able to understand what Bitcoin is or not? Or it was confusing? Is it? Okay, so let me give you a brief introduction about Bitcoin. Basically, Bitcoin समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेगी. Centralization and decentralization. Centralization is something when आपके पास power किसी एक organization के पास हो. That is called centralized, and it is very harmful for the society. For example, आप लोग अपना पैसा बैंक में रखते हो. बैंक ने आपके पैसे को ही अपने कंट्रोल में रख रखा है. आपके पास अपने पैसों का ही पूरा पावर नहीं होता. For example, if I wanted to transfer, let's say, 2 lakh rupees, but क्या मेरा UPI उसको अलाउड करेगा at one go? किसी ने करके देखा है? 1 lakh की लिमिट होती है UPI पे. So that means government is restricting you from sending your own money at your own will. So that's why आपके पास अपने ही मनी का कंट्रोल नहीं है. क्यों? Because it is a centralized system. 2008 का क्राइसिस किसी को याद है? किसी ने सुना होगा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का. तो वहां पर भी यही हुआ था. मेजर बैंक्स जितने भी थी अमेरिका के, वो क्रैश हो गए. तो जितने भी लोगों का पैसा था वो वहां पे डूब गया था. तो अल्टीमेटली लोगों का पैसा था और लोगों के पास ही पावर नहीं थी और उन्होंने वहां पे पूरा अपना पैसा लूज कर दिया था. तो 2008 के बाद बहुत ज्यादा लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हमें ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, गवर्नमेंट के पास हमारे खुद की मनी की पावर ना रहे. तो तब बिटकॉइन यहाँ बनाया गया था मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने. अब ये सतोशी नाकामोटो एक इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को नहीं पता. वो अनोनिमस है. उन्होंने बस इस सिस्टम को क्रिएट किया और लोगों के हाथ में छोड़ दिया और ये बोला गया कि ये लोगों के लिए बनाया गया है और लोगों के पास ही इसकी पूरी की पूरी पावर रहेगी. अब बिटकॉइन काम कैसे करता है? बिटकॉइन पहली बात इजी मनी नहीं है. लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में आइडिया है? अगर मैं ज्यादा गवर्नमेंट अगर ज्यादा प्रिंट करती रहती है रुपीस, तो इन्फ्लेशन उससे बढ़ता है कम होता है? कैन एनीवन आंसर? बढ़ता है, राइट? क्यों? बिकॉज इट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई.
तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो बिटकॉइन को बनाया इसलिए गया है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, दैट इज 21 मिलियन। अब वो उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, सो दैट इज द रीज़न। इफ अगर सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, फ्यूचर में जाके बढ़ जाएगी। इट्स ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now uses of Bitcoin. Currently Bitcoin को वर्ल्ड में क्या क्या यूजेस पे लिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी, आप इसको एज अ करेंसी यूज कर सकते हो। कई सारे इंटरनेशनली अगर आप देखो तो कई जगह ये पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं लोग बिटकॉइंस में। इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ अलाउ नहीं है क्योंकि आरबीआई अलाउ नहीं करता, बट देयर आर अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड व्हिच आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ पेमेंट सिस्टम। करेंसी से ज़्यादा जो बिटकॉइन यूज किया जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट यूज किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट को यूज करने के लिए एक ही पर्पस था, इसका लिमिटेड सप्लाई, बिकॉज बिटकॉइन इज लिमिटेड, इट्स ओनली 21 मिलियन एवर क्रिएटेड। तो अगर आप एक बिटकॉइन भी होल्ड करते हो, गोइंग फॉरवर्ड उसकी जब डिमांड बढ़ेगी तो एक बिटकॉइन की वैल्यू भी आपको बाकी 1% ऑफ द पॉपुलेशन में लाके रख देगा। सो एज और यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करूँ तो अगर आप लास्ट 5 साल पहले बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं, गोल्ड पे लगाते हैं, S&P पे लगाते हैं या निफ्टी 50 पे लगाते हैं, तो अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बिटकॉइन हमेशा आउट परफॉर्म करता है एनी अदर एसेट। इट्स ऑलमोस्ट 641% ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। गोल्ड सबसे पुराना एसेट क्लास है, सबसे वाइडली यूज्ड एसेट क्लास है, और उसका रिटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे, इट इज जस्ट 72, व्हिच इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन इफ यू कंपेयर। ओके, सो बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो जब बनता है तो उसका मेन यहाँ पे थीम क्या रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वर्चुअल मनी। वर्चुअली मीन्स दिस इज अ डिजिटल मनी, इट इज नॉट लाइक अ हार्ड पेपर मनी। ओके, सो ये डिजिटल ही है। सेकेंड, इट इज यूज्ड एंड सिक्योर्ड बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। और क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा सिक्योर होती है, इसको आप इतना जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना आप इसको एडिट कर सकते। And this cryptocurrency runs on decentralized network. Decentralized network से मतलब है किसी एक के पास यहाँ पे पावर नहीं होती, और जब पावर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगी, पावर आप लोगों के पास होगी अपने खुद की क्रिप्टोकरेंसीज की। So next topic is blockchain and mining. उसके लिए there is a video. Let's see that. When you first heard about Bitcoin mining, you might have had an image like this in your head. However, reality is far different. Put your hard hat on as we dig around and find out what Bitcoin mining actually is and how it's key to Bitcoin's function and security. First, a quick recap on how Bitcoin works and where mining comes into the picture. Bitcoin is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain powered by globally distributed nodes. Whenever a transaction is made, specialized nodes called miners are responsible for validating and grouping multiple transactions together into a block, which is then cryptographically linked to the block before it, hence the term blockchain. The miner which successfully adds the block is then rewarded some Bitcoin for their work. Therefore, mining is the process by which new blocks are added onto the blockchain, and also how new Bitcoin enter into circulation via the block reward awarded to miners. But how does mining actually work? Well, you may have heard that mining is about solving complex mathematical puzzles, but it's more accurate to call it a lottery, as miners are actually guessing the right number to win the block reward. To understand this analogy, here's the mining process in more detail. Each block contains a block header,
which contains data such as a timestamp, a reference to the previous block, and a number called a nonce. Miners would guess a nonce, which could be any number really, then put that along with all the data in the block header through a cryptographic hash function to create a hash. In cryptography, a hash is simply a string of characters of a fixed length created by putting data through a mathematical function, and it's easy for a computer to do. The real work in mining thus comes from the sheer number of guessing and hashing needed to reach a valid output. For reference, the current Bitcoin network hash rate is over 500 exahashes per second, which is an astronomical figure. So why is it so difficult to guess the correct nonce? Well, the thing is that roughly every 2 weeks, the Bitcoin network sets a target hash and will only accept output hashes that are equal to or smaller in value than the target hash. That may sound counterintuitive, but imagine having to roll a 1,000-sided dice. It would be more difficult to have to roll a number smaller than 10 than, say, 250. The target hash thus determines the Bitcoin network's difficulty. The higher the difficulty, the more guesses needed on average for a miner to find the correct nonce. And the first miner to output a valid hash successfully mines the block and wins the reward. And the guessing game starts all over again. This difficulty imposed on miners would also adjust up or down automatically based on factors such as total network hash rate and miner participation. For example, if more miners join and network hash rate increases, the average time needed to find the valid hash would reduce, as there would be more computational power put into the guessing game. The difficulty would then be adjusted upwards. The reason the Bitcoin network does this is to ensure that new blocks and new Bitcoin are created roughly every 10 minutes on average, in accordance with its programmed issuance schedule. So, mining is essentially a guessing game. But why this seemingly random task? Well, this mechanism, aka proof of work, ensures that miners have verifiably expended some effort and cost in order to mine a block. In this case, computational power and electricity. Therefore, aside from adding blocks and issuing new Bitcoin, proof of work helps ensure the security of the network. As more participants join and the value of the Bitcoin network increases, it becomes increasingly more difficult and expensive to attempt fraudulent transactions or to tamper with the blockchain. In case you're wondering if all this energy consumption is bad for the environment, check out this video. So इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा कि बिटकॉइन को क्रिएट करना उतना सिंपल नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे इंडियन गवर्नमेंट रुपीस प्रिंट कर देती है, राइट? एंड सिमिलरली यूएस गवर्नमेंट डॉलर्स प्रिंट कर देती है. तो क्या उन्हें प्रिंट करने में कोई इश्यू आता है? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट? उसको आप कभी भी गवर्नमेंट जब भी ऑर्डर देगी, पीस ऑफ पेपर है, कभी प्रिंट हो सकता है. बट क्या सेम चीज बिटकॉइन के लिए ट्रू है? नो, बिकॉज बिटकॉइन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद जनरेट होता है और उसमें बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर लगती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगते हैं और बहुत सारे कंपटीशन उसमें भी है. इट्स लाइक करोड़ों लोग बिटकॉइन को माइन करने में लगे होते हैं और कोई एक अल्टीमेटली पजल सॉल्व कर पाता है, तब जाके बिटकॉइन सर्कुलेशन में आता है. सो दिस प्रोसेस, बिटकॉइन को सर्कुलेशन में लेके आना, बिटकॉइन को जन्म देना, दिस इज कॉल्ड माइनिंग. और ये माइनिंग कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको लाखों की मशीनें लगती हैं और ये लाखों की मशीनें पूरा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड करोड़ों लोग लगे हुए हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए. सो दैट्स व्हाई बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस है दुनिया में. क्यों? क्योंकि इज अ हार्ड प्रिंट मनी, बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पे एफर्ट्स लग रहे हैं. दैट्स व्हाई ये सर्कुलेशन है. अब आज हम यहाँ पे बिटकॉइन की बात कर क्यों रहे हैं? देयर इज अ रीजन, देयर इज अ टाइमिंग. हर एक चीज की एक साइकिल होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पटाखे सबसे ज्यादा कब खरीदे जाते हैं? दिवाली में, राइट? गोल्ड सबसे ज्यादा कब खरीदा जाता है ना? सिंपल आंसर. क्यों? क्योंकि दिस अ साइकिल, राइट? इट्स अ साइक्लिक फिनोमेना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक चीज का ट्रेंड आएगा ही आएगा, राइट? एंड सेम चीज यहाँ पे हम बिटकॉइन के लिए भी बोलेंगे. अब मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन हाल्विंग की और बिटकॉइन साइकिल की. तो अभी हमने माइनिंग पढ़ा. माइनिंग में होता क्या है कि जब भी कोई भी, अभी हमने एक वर्ड भी पढ़ा था ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन में क्या होता है? एक नया ब्लॉक हमें ऐड करते रहना होता है पूरी चेन में. उस ब्लॉक के अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होती हैं जो माइनर्स लोग माइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं. तो जब कोई भी माइनर सक्सेसफुली एक ब्लॉक ऐड करता है इस ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के बाद,
उसको एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे एक बिटकॉइन दिया जाता है। और कितने कितने बिटकॉइन दिए जाते हैं? दैट इज 2012 में 25 बिटकॉइंस मिलते थे, 2016 में हाफ हो गया रिवॉर्ड 12.5, देन 6.25, अभी करंटली है 3.125। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम अपने माइनर्स को रिवॉर्ड हाफ कर दे रहे हैं। और हाफ करने का यहाँ मतलब क्या है कि हम बेसिकली जो सप्लाई है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड हमेशा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, राइट? एंड सेम गोज विद एवरी हाल्विंग साइकिल। हाल्विंग का मतलब है हम रिवॉर्ड्स को हाफ करते जाएंगे। और ये कब होता है? हमेशा 4 साल बाद होता है। वर्ल्ड कप सबको पता होगा ना, वर्ल्ड कप क्रिकेट का कितने साल में होता है, राइट? 4 साल में होता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप वो भी 4 साल में होता है। सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ इवेंट यहाँ बिटकॉइन में भी देखा जाता है। हर 4 साल के बाद आपको हाल्विंग की जाती है। हाल्विंग से क्या होता है? रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट उसके बाद प्राइस शूट अप हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट चार्ट दिखा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज कॉमन चीज है जो भी मैंने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली आपको बताया कि जब भी सप्लाई आप हाफ करते हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा। उसका यहाँ पे हमने प्राइस पे भी देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2012 में हाल्विंग हुई, तो हाल्विंग के जस्ट बाद क्या बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा? बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा। देन अगली हाल्विंग हुई 2016 में, तो 2016 के बाद 2017 में उसका प्राइस बढ़ा? यस, बढ़ा। नेक्स्ट हाल्विंग थी 2020। हर 4 साल में ये माइनिंग होती रहती है, हाल्विंग होती रहती है। तो 2020 के बाद क्या उसका प्राइस बढ़ा बिटकॉइन का? एंड देन 2024 में लास्ट हाल्विंग हुई है। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि बिटकॉइन का अगेन प्राइस क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल इज इंपॉर्टेंट। हर 4 साल में फिनोमेना आता है। तो अगर आप लोग 2025 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाल्विंग अब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे शूट अप होगा। ठीक है, अब फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन ठीक है, बट बिटकॉइन को हम अभी भी क्यों लें? हम अभी भी समझते नहीं बिटकॉइन को, ठीक है, बट हम कैसे मान लें कि बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट है? ठीक है, आप लोग मेरी बात नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, यूट्यूबर की बात नहीं सुनना, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे CNBC, फोर्ब्स, इन जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन ड्यू टू हाल्विंग क्या करते हैं? CNBC कहता है बिटकॉइन ऑलमोस्ट 200K तक जाएगा। सेम फोर्ब्स कहता है इसका प्राइस प्रेडिक्शन है 1 मिलियन तक भी, इसने बोला हुआ है 1 मिलियन। तो फोर्ब्स तो गलत नहीं बोलेगा, उनके एनालिस्ट डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस होंगे। CNBC के जितने भी एनालिस्ट है वो भी एक्सपीरियंस होंगे, राइट? तो if they are predicting Bitcoin to go above 200K, then there must be some reason, and that reason is nothing but halving. Okay, and and apart from that, क्या आप मानते हो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है? ठीक है, if अमेरिका का प्रेसिडेंट सुपर पावर वर्ल्ड का, ठीक है, इस यहाँ पे प्रेसिडेंट चीख के बिटकॉइन पे कॉन्फ्रेंस करता है, बिटकॉइन को प्रमोट करता है, बिटकॉइन को खुले अपने ट्विटर पे जाता है, डीपी वगैरह चेंज करता है। एंड सेम गोज विद इलॉन मस्क। इलॉन मस्क खुद में एक बहुत बड़ा सुपर पावर इंसान है, राइट? मुझे वो रियल लाइफ आयरन मैन लगता है, ठीक है? तो ही आल्सो प्रमोट्स डॉजकॉइन। सबको डॉजकॉइन पता है? किसी को डॉजकॉइन की स्टोरी? इफ एनीवन नोस? ओके, वेरी फ्यू। तो डॉजकॉइन को खुलेआम प्रमोट करता है। सो दिस इज द पोटेंशियल फॉर क्रिप्टो करेंसी। इफ दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट ठोक पीट के बोल रहा है कि बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? ही आल्सो अंडरस्टैंड दिस स्टफ कि हाल्विंग है, प्राइस अप जाना है, ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदो। सेम गोज विद इलॉन मस्क बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड्स द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, चलो अब फ्यूचर ट्रेंड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है हमने टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एज यूजुअल and as expected America on top of it। इंडिया की इकोनॉमी आप लोग देख रहे हो कितनी यहाँ पे 4.3 ट्रिलियंस। तो इंडिया, पूरे इंडिया में इकोनॉमी कितनी है? 4.3 ट्रिलियंस, राइट? चलो अब मैं बात करता हूँ ब्लैक रॉक की। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लैक रॉक किसी को पता है? नाम सुना है किसी ने अबाउट ब्लैक रॉक? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म है एंड ही करंटली होल्ड्स हाउ मच? 11.5 ट्रिलियन USD अंडर हिज पोर्टफोलियो, जो कि इंडिया का रफली अराउंड 3 टाइम्स हो गया। इंडिया की इकोनॉमी में जितना पैसा है ब्लैक रॉक अकेला उससे 3 गुना पैसा कंटेन करता है। एंड यू नो व्हाट ब्लैक रॉक इज डूइंग नाउडेज? वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड।
BlackRock in 1st January 2024 has launched Bitcoin ETF. So BlackRock हर दिन Bitcoins buy कर रहे हैं। तो एक ऐसा एसेट मैनेजमेंट फर्म जो इंडिया से भी 3 गुना पैसा को मैनेज करता है, on the daily basis, he is buying Bitcoin non-stop. So there must be some reason, right? Another interesting fact which I wanted to show you guys is, अच्छा let's talk about ETF first. ETF कितने लोगों को पता है क्या होता है? Only one, okay. 2, that's it. Okay, 3. Okay, very good. कोई बात नहीं. ETF is just like stock. अभी आप ये सोच लो कि एक स्टॉक की तरह होता है, ठीक है? So think about this. BlackRock ने अपना गोल्ड का ETF यानी गोल्ड का स्टॉक निकाला था और ऑलमोस्ट 20 साल बाद गोल्ड के ETF ने कितना अक्यूमुलेट किया यहाँ पे? 33 बिलियन अक्यूमुलेट हुआ थ्रू गोल्ड का ETF। और वो भी उसने कब लॉन्च किया था? 2005 से लॉन्च किया था। एंड BlackRock ने सिर्फ 1 साल पहले बिटकॉइन का यहाँ पे ETF लॉन्च किया था। एंड कैन यू बिलीव दिस? जितना अमाउंट गोल्ड को 20 साल लगे थे अक्यूमुलेट करने में, बिटकॉइन ने उससे डबल कर दिया यहाँ पे विद इन 1 ईयर। सो दैट शोज द पोटेंशियल ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन हमेशा हर एक एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करता है इन एवरी सिनेरियो। सो जस्ट इमेजिन गोल्ड जैसा एसेट क्लास जो पूरी दुनिया को पता है, जो सबके पास होगा, आई एम श्योर, ठीक है, उसको भी बीट कर दिया सिर्फ विद इन 1 ईयर बिटकॉइन ने। सो दिस इज द पावर ऑफ बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के अडॉप्शन, भूटान जो है वो एक छोटा सा देश है, ठीक है, बट स्टिल ऑन द डेली बेसिस दे आर जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यू थ्रू बिटकॉइन। और ये हमेशा माइन करते रहते हैं, इनके पास बहुत सारे माइनर्स लगे हुए हैं। भूटान, जिसको ना पता हो, माउंटेन वाला देश है, तो उनके पास बहुत सारा खाली स्पेस है, तो उन्होंने माइनिंग मशीन लगा रखी है। हैप्पीएस्ट कंट्री, हाँ। एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली जनरेटिंग बिटकॉइंस। उनको अपने रुपीस या अपनी करेंसी पे कोई भरोसा नहीं है। दे आर ओनली डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन एंड थ्रू बिटकॉइन दे आर लिटरली आउट परफॉर्मिंग नेशंस लाइक इंडिया एज वेल। सो दैट इज द पावर ऑफ बिटकॉइन। देयर इज अनदर कंट्री कॉल्ड एल सल्वाडोर, ओके, ये वहां का प्रिंस है। तो इस प्रिंस ने क्या किया, बिटकॉइन की पावर को समझा, बिटकॉइन को समझा कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी साइकिल्स वर्क करती हैं। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द स्टफ, ही इन्वेस्टिंग basically he started accumulating more and more bitcoins। और उसने क्या किया, अपने पूरी कंट्री में लीगल टेंडर कर दिया कि आप बिटकॉइन को एज अ पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड एज अ रिजल्ट एल सल्वाडोर आज की डेट में इवन कंट्रीज लाइक इंडिया को बीट करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि छोटे से देश हैं सारे। बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट को अपने पोर्टफोलियोज में या अपने इकोनॉमी में लेके आ गए। एंड एज अ रिजल्ट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन है, छोटी इकोनॉमी के लिए बिटकॉइन बहुत अच्छा है, बट बड़ी इकोनॉमी के लिए हर एक को उस लेवल पर सीखना जरूरी होगा, तब जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इंडिया एज कम्पेयर टू इंडिया, लिटरेसी रेट इज वेरी नॉट ट्रू। ओके, सो हिज क्वेश्चन इज कि छोटी जो कंट्रीज होती हैं वो तो बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं, वाइड रेंज एक्सेप्टेंस भी है, बट लेट्स टॉक अबाउट आवर नेशन ओनली। इंडिया में बिटकॉइन की इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? देखो, पहली चीज आती है यार अपने आप से। अगर मैं किसी को बिटकॉइन समझाने चला जाऊं ना, तो लिटरली लोग मुझे काटने वाले बहुत मिलेंगे कि भाई अभी नहीं सुनना। As simple as that. And it's just not for Bitcoin. Even if you start explaining stocks to Indian people, they will reject your opinion. वो बोलेंगे कि नहीं भाई FD ठीक है हमारा, नहीं भाई, हाँ, वो कहते हैं ये स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट एक जुआ है। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो चेंज नहीं करना चाहते, वो समझना नहीं चाहते, वो चीज़ों को नकारना बहुत अच्छे से जानते हैं, बट सीखना नहीं चाहते। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप इन चीज़ों को समझो, सीखो। If something is performing good, तो आप उसके बारे में पहले सीखो before even investing, right? I hope you got your answer. Okay. So this is another article which is about Singapore. So in Singapore, 35% of the citizens own Bitcoin. So can you guys think now why they are owning 35% people? They are owning Bitcoins, right? So there must be a reason. Because they know which is the best performing asset of this world right now, that is Bitcoin. And
and as a result, their portfolio is outbeating the stock market of every country. So that's the impact, kind of impact Bitcoin is having. Okay, so next would be bonus stock recommendation from our side. So everybody knows about Nvidia, everybody knows about Apple, Google, Microsoft, right? यहाँ पे कोई ऐसा इसको ना बताओ, सबको पता है इन सब के बारे में, right? But there's one stock recommendation from our side. If you see the best performing stock within S&P 500, so there is a list of those stocks from 2019 to 2024. Nvidia, GME, MSTR, and Celsius Holdings, right? So these stocks are outperformers of the S&P 500 market. So we have a stock recommendation from our end, and that is MSTR, because I have been looking and understanding about this stock a lot. So let me explain you what this stock is. So if you see, Nvidia सबको पता होगा, right? So past 1 year returns of Nvidia, if you see, and you can see and compare with MSTR, which is MicroStrategy. So do you still, what sort of feelings you are getting after seeing this comparison? That MSTR is also outperforming a company like Nvidia. Nvidia सबको पता है यहाँ पे, है ना? It's a big company, right? And एक company जो outperform कर रही है Nvidia को, this should be a good company. So I'm talking about here about MicroStrategy. तो MicroStrategy का CEO है, his name is Michael Saylor. इसको यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, because ये टिपिकल देसी अंकल की तरह एक्ट करता था बिटकॉइन के लिए. अब देसी अंकल क्या होते हैं? इफ अगर मैं किसी को समझाने बैठूं कि अंकल जी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो, वो बोलेगा ना बाबू ये तो स्कैम है, हमें डर लगता है, एफडी सही है, मैं गोल्ड खरीद लूंगा, राइट? सो दिस गाय माइकल सेलर, इसने सबसे पहले बिटकॉइन को नकारा था बैक इन 2013 when बिटकॉइन वाज स्टार्टिंग फ्रेश. So 2013 में he was the one जो क्रिटिसाइज कर रहा था बिटकॉइन को खुलेआम. क्यों? क्योंकि इसको समझता नहीं था और ये सीधा स्कैम बोलता था. बट लेटर ऑन जब बिटकॉइन ग्रो करने लगा, इसने बोला कि मैं किसी चीज को बिना समझे स्कैम क्यों बोलूं, rather than मैं इसको स्टडी करता हूँ, ये अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है. There should be a reason if someone is performing good. Either he is a cheater or he is actually a good performer, right? तो उसने वो चीज एक्सप्लेन करी और अपने पूरा एक्सपर्टीज किया, रिसर्च करी, एंड लेटर ऑन 2020 में जब उसको फुल नॉलेज आ गई कि ठीक है बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की पावर क्या है, then what he did was he started accumulating bitcoin from his cash, company's cash reserve. तो उसने क्या किया, बाकी कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास कैश रिजर्व्स होते हैं उनके कैपिटल में, बट दिस गाय इसने कैश रिजर्व ना करके उनको बिटकॉइन में कन्वर्ट किया, और जितना जितना इसके पास कैश रिजर्व आता था ये उतने उतने बिटकॉइन खरीदता चला जाता था. लोगों ने उस टाइम बोला भाई ये पागल है, कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी बिटकॉइन क्यों खरीदेगी, कैश रिजर्व सबके पास जरूरी है, कंपलसरी है, राइट? बट इसने बोला कि नहीं, अगेंस्ट द हर्ट जाता हूं, मैं बिटकॉइन खरीदता हूं, बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड हाउ बिटकॉइन इज इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लेशन. एंड लेटर ऑन इफ यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ हिज कंपनी, ही हैज बीटन everyone in S&P 500. So just by using power of Bitcoin, MSTR, MicroStrategy, इसने S&P 500 को आउट परफॉर्म कर दिया. क्यों? Just one simple action, he has taken the best performing asset in his portfolio. Yeah. बिटकॉइन कलेक्टिव ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ सकता है. Will you please stand up and ask मेरे questions? हिसाब से बिटकॉइन का ये है कि कलेक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए, और बिटकॉइन मतलब एक तरीके से चेन के ऊपर काम करता है. तो मेरा यही पर्पस रहेगा कि बिटकॉइन का बबल बस्ट होने की संभावना है. अगर चेन टूटी तो थोड़ा रिस्क तो है. सो चेन टूटेगी कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोल दिया चेन टूट जाएगी, बट डू यू नो एक बिटकॉइन माइन करने में कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं? अगर मैं भी माइन करना चाहूँ वो मैं माइन नहीं करा पाऊंगा, राइट? बिकॉज देर आर अदर लिटरली 1000 lakh crore even miners who are competing to create a Bitcoin. And when you say about bubble burst, तो बबल बर्स्ट वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज अभी तो ये नेशंस में रेस स्टार्ट हुई है बिटकॉइन होल्ड करने की. लाइक अ सेड, हो सकता है मैं बेवकूफ हूँ, हो सकता है यूट्यूबर्स बेवकूफ हैं, बट क्या तुम्हें लगता है ब्लैक रॉक जो इंडिया की इकोनॉमी का 3 गुना पैसा लेके बैठा है, क्या वो बेवकूफ होगा?
व्हाट डू यू थिंक? या तो मैं बेवकूफ हूं या ब्लैक रॉक बेवकूफ है? या थिंक इनवर्सली, इफ someone is smart, I should follow his footsteps after doing my own research. Is that fine? And when you say about chain, I actually don't get your question. Chain पे क्या question था? He has to understand blockchain. Okay. Actually, in charge of this coding. Is it easy to crack? No. Blockchain is very secure. It is very secure because it is using cryptographic algorithm, and in cryptographic algorithm there are n number of possibilities, n number of permutations and combination to guess about. So it is very much secure. Okay, so let's go back to the topic. We were discussing about MSTR, which is MicroStrategy. So if you see MicroStrategy versus the big players, that is Apple, Google, Tesla, Microsoft, Amazon. So these are the returns of these big players, and this is the return of MicroStrategy. So it's clearly visible that just using the power of Bitcoin, how one company can beat even the best companies around the world. And what he did was just a simple step. He did a research, and post his research, he accumulated Bitcoins as much as he can, and see the result. So just a simple step can change a fortune. So if somebody wants to invest in stock, so this is a personal recommendation from my end. MicroStrategy is one stock which can give you at least 300 to 500% return in the next coming 1 year. So if you wanted to have some small portfolio, you can please add this stock, MicroStrategy, and you can start investing for as much as $1 बस $1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. तो इसको रिसर्च करो, accumulate करो, and you will have a good portfolio as compared to any other one in the stock market. Indian stock कोई भी बीट नहीं कर पाएगा MicroStrategy को. आप लोग HDFC खरीदोगे, Axis Bank के स्टॉक खरीदोगे, बजाय इसके आप खरीदो MicroStrategy. अब MicroStrategy आगे बढ़ेगा क्यों? Because it has a power of Bitcoin. और क्योंकि इसके पास बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है, तो एज अ रिजल्ट ये सारे दुनिया के अदर इकोनॉमीज के बड़े बड़े स्टॉक्स को बीट कर देगा. सो इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. Next topic is how to store your wallet, how to store your bitcoins or cryptocurrencies, right? So there are two methods. First one is cold, the second one is hot wallet. So what is a hot wallet? Hot wallet, why it stands for hot wallet? Hot means risky. ये ऐसा wallet है जो risky है, इसीलिए इसको hot wallet बोला गया है. ये wallet आप कहाँ यूज कर सकते हो? टिपिकली जब आप ट्रेड करोगे, आप एक्सचेंजेस पे बाय करोगे, तो वहां पे जब आप स्टोर करके रखते हो उसको बोला जाता है हॉट वॉलेट. देयर इज अनदर मेथड, उसको बोलते हैं हम कोल्ड वॉलेट, यानी कि यूएसबी जैसे ड्राइव्स होती हैं, आप अपने बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी यूएसबी जैसे ड्राइव्स में ही कंटेन कर सकते हो. ये थोड़ी सी महंगी आती हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 13,000 8,000 की भी ये ड्राइव्स मिलती हैं. तो इट्स सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव बट इट इज सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि आपकी बिटकॉइंस के आपकी क्रिप्टो करेंसी का पावर आपके हाथ पास होगा, कस्टडी आप खुद यहाँ पे होल्ड करते हो. Whereas exchanges में प्रॉब्लम क्या है? There's a recent case. किसी को WazirX के बारे में पता है? ठीक है. So WazirX एक ऐसा एक्सचेंज था जो अभी भाग गया पैसे लेके. बहुत सारे करोड़ों लोगों के वहाँ पे फंड्स अटक गए. तो उन लोगों ने ट्रेड करने के लिए हॉट वॉलेट यूज किया था, और जब एक्सचेंजेस भाग जाएगा तो आपका यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज और वॉलेट यहाँ पे होल्ड पे चला जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे. सो एज अ रिजल्ट हॉट वॉलेट आर रिस्की बट कोल्ड वॉलेट आर नॉट. बट हाँ, कोल्ड वॉलेट की अपनी भी प्रॉब्लम है. कुछ लोग होते हैं भूल जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ लोग होते हैं वो ध्यान नहीं रख पाते. हाँ, पासवर्ड भूल गए. फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव रखी है, पेन ड्राइव में भूल गए, कहीं छोड़ के आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज आपकी दे आर गॉन फॉरएवर. फिर आप वहाँ पे उसको दोबारा से नहीं ले पाओगे. इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो व्हाट आर द एक्सचेंजेस दैट यू गाइस कैन लुक फॉरवर्ड टू? काफी सारे हैं यहाँ पे, बट मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करूंगा टू गो विद CoinDCX. आप CoinDCX में जाके ट्रेड कर सकते हो. सेकंड वन आई विल रिकमेंड Mudrex. Mudrex is also good. Then CoinSwitch and Jewels. But my personal recommendation would be CoinDCX. तो CoinDCX काफी सिंपल है. यहाँ पे आप INR में ट्रेड कर सकते हो. यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 500 प्लस कॉइन्स मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए.
let me be frank with you, all the cryptocurrencies are not safe except Bitcoin. Bitcoin is one thing, rest of them are other things, right? So Bitcoin में trade करना is super safe, but rest of the coins they are super risky. अच्छा, cryptocurrency में आप कितने टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं? There are investors, there are traders. Investors कौन होते हैं? जो किसी भी चीज को खरीद के होल्ड करेंगे सालों तक, जब तक उनको अपने लेवल पे प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिल जाता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और मैं उसका टारगेट सेट करता हूँ, जब वो 200 पे आ जाएगी तो मैं उसको बेच दूंगा. सो दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टर. देयर इज अनदर क्लास ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड ट्रेडर्स. ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी बाय एंड सेल करते हैं, बड़े टाइम पे भी बाय एंड सेल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्राइस ऑफ अ करेंसी इज 100, जब वो 105 पे आएगा तो मैं इमीडिएटली 105 पे बेच के निकल जाऊंगा, चाहे वो आज है चाहे वो कल है. सो दीज आर कॉल्ड ट्रेडर्स. वो डिपेंड करेगा आप लोगों पे, आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हो कि इन्वेस्टर बनना चाहते हो. इन माय पर्सनल रिकमेंडेशन, इन्वेस्टर बनना हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड पे हमेशा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं. वेयरएज ट्रेडर में देयर आर चांसेस कि मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेगी और अल्टीमेटली आपको लिक्विडेट कर देगी, बैंकरप्सी. सो पर्सनली मैं क्या करता हूँ इन सारे ट्रेडर्स में से? मैं इन्वेस्टर भी हूँ और मैं स्विंग ट्रेडर भी. स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि अगर मैंने 100 में लिया, 150 पे पहुंचा, मैं इमीडिएटली उस एसेट को सेल कर दूंगा. और इन्वेस्टर मैं हूँ एज अ बिटकॉइनर, तो मैं बिटकॉइन खरीद के बैठा हूँ और अब वो उसको मैंने 10 साल या 15 साल के बाद उसको सेल करूंगा. सो लेट मी टेल यू मोर अबाउट मोनार्क एफएक्स, माय ओन कंपनी. So what we do? Basically, we are an institute where we teach people and we make them aware about how to, become a successful trader. We teach them about Indian stocks. We teach them about how to trade in Indian stock. We teach them about US stocks. We trade in cryptocurrencies. We trade them in forex. तो जितनी भी टाइप की ट्रेडिंग है, हम लोग वहाँ पे उन लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को. और there is a difference if you learn trading from YouTube and you learn trading from us, because the concept which we are using that is different from the ones which we are seeing in YouTube. YouTube में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखा देते हैं, ठीक है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मैं सीख रहा था स्टार्टिंग में, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता था, मेरे सपोर्ट हर बार टूट जाते थे, प्राइस नीचे चला गया. मेरे पास रीजन नहीं होता था कि वो मेरा प्राइस एक्शन गलत हुआ कहाँ पे, बिकॉज मेरे पास कुछ क्लियर कट आंसर नहीं होता था. बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करते हैं. और देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई. तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपके पास हर एक आंसर मिलता है आपके सारे क्वेश्चंस का, कि अगर प्राइस नीचे गया तो क्यों गया, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. So what we do is कि हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, एंड वी हैव अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वेयर वी गिव कॉल्स एज वेल. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने क्रिप्टो करेंसी ढूंढा था. डेट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2 अगस्त का टाइम है. 2 अगस्त को हमने एक क्रिप्टो करेंसी ढूंढा था, इसका नाम था फॉग. और 2 अगस्त से लेके मैक्सिमम विच इज आई थिंक 14 नवंबर, इस क्रिप्टो करेंसी ने कितना रिटर्न दिया था यहाँ पे? 2154% ऑफ रिटर्न. सो 2000% का रिटर्न एक क्रिप्टो करेंसी आपको सिर्फ 4 मंथ के अंदर अंदर दे सकता है. सो दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. ये आपको जल्दी अमीर भी बना सकता है, ठीक है, इफ अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता हो. कोई चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो क्यों बढ़ने वाला है, किसी का गिरने वाला है तो क्यों गिरने वाला है, वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से आपको पता लगता है. Then there is another coin which is called Hagi. Back in 20 नवंबर को हमने Hagi को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि Hagi will go up, and since our call it has given us almost 440% of returns. So अगर जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करते हैं, जैसा स्लोगन म्यूचुअल फंड सही है, 30 से 40% रिटर्न देते हैं और अपने आप को सही बोलते हैं. बट लोग जिस चीज को स्कैम बोलते हैं, वो सिर्फ आपको 2 महीने के अंदर 400% का रिटर्न देता है, मोर देन 10 times ऑफ व्हाट योर म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि या तो म्यूचुअल फंड सही है या क्रिप्टो करेंसी सही है. अच्छा, 2 चीजें होती हैं, क्रिप्टो करेंसी 2 धारी तलवार है. अगर ये आपको अमीर बनाता है तो आपको ये यहाँ पे रेक्ट भी कर सकता है, ठीक है. एक स्लोगन मैं हमेशा बोलता हूँ, डायलॉग बोलता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज में या तो आप रोडपति से करोड़पति बनोगे या करोड़पति से रोडपति बनोगे.
बेसिकली पति तो बनोगी, ठीक है? तो स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड स्टार्ट लर्निंग. So I think that's pretty much it, and I would like to take more questions from your end. So people, anybody have a question? Yeah, hello. FIU. Hi, my name is Siddharth. Hello. Okay, sure. Yeah, so I have a question. You explained it very well. First of all, I appreciate that. But as you told us that cryptocurrencies are kind of the next future, and we all should invest in that. But I personally feel that I would like to ask you, why do we use money, physical form of money that we have in the first place? I would like to ask you that. Why we use money? Yeah. Okay, so let me start with barter system. When there was nothing, there was no coins, there was no card, there's no debit card. We used to barter system, जिसको ना पता हो मैं explain कर देता हूँ. For example, मेरे पास कोई exchange है, मैं उसके बदले में दूसरा किसी से प्रोडक्ट ले लेता था, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास लेट्स से एक हॉर्स है और तुम्हारे पास लेट्स से एक डॉग है, ठीक है? और मुझे तुमसे कुछ आइटम लेना है, तो क्या मैं ये बोलूँगा भाई आप मेरा हॉर्स रख लो और अपना डॉग मुझे दे दो इन एक्सचेंज? No, that is fine. But my question is, basically we all use money because we trust it. We have a sense of trust because अगर कल को कोई दिक्कत होती है, because these all things are government regulated, right? अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे का चोरी हो जाएंगे तो आप कल को पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो. In fact, stocks are also regulated by bodies, government bodies, SEBI and all. So my question is, क्रिप्टो करेंसी पे कोई ट्रस्ट कैसे कर सकता है जब वो अगर उसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ही नहीं है? फॉर एग्जांपल, अगर कल को किसी के वॉलेट से क्रिप्टो, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो उसके वॉलेट से 2 क्रिप्टो करेंसीज, 2 बिटकॉइंस गायब हो गए थे. तो देयर इज नो वन टू कंप्लेन. आई मीन यू कैन नॉट गो एंड कंप्लेन टू पुलिस कि हाँ मेरे वॉलेट से ऐसे चोरी हो गया, कुछ भी हो गया. सो व्हाई डू वी हैव टू इवन get into something that we don't even trust, and we cannot even trust as because these are not government regulated currencies, right? So that is my question. Okay, so it's a very good question, by the way. ठीक है? So let me explain it. First of all, it is not regulated in India, ठीक है? But in countries like El Salvador, Singapore, Switzerland, there are places जहाँ पे Bitcoin को as a currency accept किया जाता है. India अभी कहीं ना कहीं लैग करता है in terms of understanding what Bitcoin is. First thing, maybe in the future, Indian government will give us some kind of framework जिससे हम Bitcoin को भी रेगुलाइज करेंगे. और see, अगर कोई चीज़ regulations में नहीं है तो Bitcoin US की मार्केट पे लिस्ट कैसे हो गया Bitcoin ETF? So there is a framework, right? No, that is also fine. I got your point. But एक और point मेरा दूसरा ये है कि पहले तो लोग कैसे ट्रस्ट करें, और दूसरी बात कल को अगर मान लो how does a government actually control an economy? इकोनॉमी को कंट्रोल मनी के थ्रू तो करते हैं, मनी सप्लाई के थ्रू ही करते हैं. अगर कल को बिटकॉइन, ऑब्वियसली बिटकॉइन इज लिमिटेड, वो बनाया ही लिमिटेड भी है, तो उसको कंट्रोल कैसे करा जा सकता है? क्योंकि आपके इन्फ्लेशन नहीं होगा, इन्फ्लेशन तो होएगा ही होएगा क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है. डिमांड तो इंक्रीज होती जाएगी बट सप्लाई ही लिमिटेड है, तो एंड में तो वो इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो सैचुरेट हो जाएगा. उसको कंट्रोल करने वाला कोई होएगा ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल दैट. द सप्लाई इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सो हाउ डू यू थिंक वी कुड टैकल दैट? See, answer is based in your question only कि गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट, मुझे बताना माल्या का केस क्या था? डू यू नो अबाउट माल्या, विजय माल्या? यस. विजय माल्या को पैसा दिया किसने? क्या एक आम इंसान ने दिया? बैंक्स ने दिया. बैंक कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इससे स्कैमर्स को आपका पैसा दे सकती है, हाँ या ना? देती है. वो आम लोगों का पैसा था जो विजय माल्या लूट के भागा. इज दैट राइट? Yeah, that is right. But why do you think that all the bad things in the world happen, and the transactions happen in cryptocurrencies? All the bad things that happen in the world, the transactions always tend to go with cryptocurrencies. Okay, so let me answer one thing. First question, कि अगर क्रिप्टो से आपका पैसा कोई लेके भागा, so government will not do anything about it. Exactly. First answer, that is right. Absolutely yes. Indian government will not do anything about it.
लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट यूएस में यस दे विल रीच आउट, वहाँ पे एफबीआई है, वो रीच आउट कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज किसके पास गई, वो लोग ढूंढ सकते हैं फ्रॉड को किसके पास गई। इंडिया नो, इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी, बट यूएस में डेफिनेटली एफबीआई रीच कर क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक करना ही तो आई मीन दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल राइट, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट बट व्हाट आई नो आई मीन मेरे को जितना पता है क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक करना, उनकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना ही पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से डार्क वेब पे जो भी सारी चीजें होती हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ही पेमेंट लेते हैं। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शन ट्रैक करना पॉसिबल है, बट अगर किसी ने कोल्ड वॉलेट भी ले लिया उसको ट्रैक नहीं कर सकते। But somehow it is risky, right? It is obviously risky. Everything is risky in this world. Should I have an extended question? Okay. I just would like to add on. I feel like this is going to encourage the cross-border illegal monetary transactions and can be utilized for terrorism and many other things. First of all, it was a good question, a good conversation that I had with you. So, next question is from ma'am, and he's asking that Bitcoin might promote legal or illegal cross-border transactions, right? So, let me be frank with you. जब Bitcoin नहीं था, तो क्या illegal That was ऐसे? illegal. That was illegal. Now legally we are talking about this. That this is possible. We can transact in Bitcoin. Yes, yes. Are we not making it looks to be legal? Getting my point. The concept. So, firstly, ma'am, see the question is कि cross border illegal हम कर रहे हैं right कि नहीं? So there is a currency called XRP, ठीक है? XRP it is partnership with world's biggest banks, and they are making cross border payment legal plus cheaper. So they are cryptocurrencies who are basically improvising our own banking system in a much faster and a better way. Yeah. So cryptocurrencies are just not currency, they are solving a problem in this real world. एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, Web3 के बारे में किसी को नॉलेज है? नहीं होगी, ठीक है, मैं बताता हूँ। Web2 क्या होता है? आप लोग वीडियो किस में देखते हो सब? YouTube पे, ठीक है? YouTube आपके वीडियो देखने से पैसा कौन कमाता है? YouTube और कंटेंट क्रिएटर, राइट? क्या आप लोग पैसा कमाते हो? नहीं, so that is called Web2. ठीक है, जहां पे क्रिएटर प्लस द प्लेटफॉर्म दे विल अर्न द मनी, बट क्रिप्टो करेंसी दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ब्रिंगिंग Web3 मीनिंग इज इफ यू विल वॉच अ कंटेंट ऑन YouTube और देयर प्लेटफॉर्म दे विल गिव यू मनी फॉर डूइंग दैट. So these sort of problems can be solved using Web3 and cryptocurrencies are working on it. So that's why they are the future. Yes. सर आपकी सारी फिलॉसफी जो भी आपने बोला है तक जितना भी सारा बोला है आपका एक प्याज की तरह फिलॉसफी है पूरी. डोंट आप वो ना समझे कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट